Now let's begin with exercise number 8.2. Question number 1. Evaluate the following. First sum is sin 60 degree multiplied by cos 30 degree plus sin 30 multiplied by cos 60. Now this is a question. You have to substitute the value, okay, which we have discussed just now in last video. What is the value of sin 60? Keep the table open in front of you. Sin 60 is root 3 upon 2. Cos 30. What is the value of cos 30 from that table? Root 3 upon 2. Plus sin 30 half multiplied by cos 60 is also half. Now root 3 multiplied by root 3 is 3 and 2 2s are 4 plus 1 1s are 1, 2 2s are 4. We can add the number because denominators are same. 3 plus 1 equal to 4. 4 divided by 4. 4 4 get cancelled. Answer is 1. Isn't it very simple? Now let's solve the second sum. Twice sin square 45 plus cos square 30 minus sin square 60. ठीक है. So twice sin square 45. So we'll 2 हम as it is लिखेंगे and it is tan square 45. So we'll put the value of tan 45 and it will be squared. Plus cos 30. What is the value of cos 30? Root 3 by 2, and since it is a square you have to write square. Sin 60 root 3 by 2 and square. Now 2 into the square of 1 is 1 plus the square of root 3 is 3 and the square of 2 is 4 minus root 3 का square क्या होगा 3 and 2 का square 4. Now plus root 3 by 4 and minus plus 3 by 4 and minus 3 by 4 will get cancelled and 2 ones are 2. So what is the answer? The answer is 2. Isn't it very simple? ये बहुत ही easy है. Now question number 3. Cos 45 upon sec 30 plus cosec 30. What is the value of cos 45? 1 upon root 2 divided by sec 30. It's 2 by root 3 plus cosec 30 2 by 1. So it's give 1 by root 2 upon. यहाँ हमने डिनोमिनेटर का इनका LCM लिखा because denominators are not same. So इनका LCM root 3 आएगा. Then 1 multiplied by 2 is 2 and root 3 multiplied by 2 is 2 root 3. Then 1 upon root 2 multiplied by root 3 upon 2 plus 2 root 3. Because ये divide है तो इनको जब multiply करेंगे तो ये reciprocal आएगा. So root 3 numerator में गया और 2 plus root 3 denominator में आ गया. Now 1 multiplied by root 3 is root 3 and root 2 multiplied by 2 plus 2 root 3. Correct? Now what next? After this you have to rationalize it. आपको पहले तो आप इसका ब्रैकेट ओपन कर लीजिए. लाइक अभी ये रूट 3 लिखा हमने, फिर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2 रूट 2 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट 3 इज इक्वल टू 2 रूट 2 और रूट 3 मल्टीप्लाई होके रूट 6 हो जाएगा. अब टेक आउट 2 एज कॉमन. हमने यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया और बाद में जो आपका ब्रैकेट में आया रूट 2 प्लस रूट 6 इसको रैशनलाइज करना है. ओके, बिकॉज इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर. सो रैशनलाइज आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, इसका अपोजिट साइन लेके, मतलब रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 6. सो रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 इज 3 2s are 6 रूट 6 एंड रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 6 इज 3 6 are 18 रूट 18. दिस इज रूट 6 माइनस रूट 18 अपॉन 2 एज इट इज लिख दिया हमने एंड आई अप्लाइड हियर द आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर मतलब रूट 2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज रूट 6 का स्क्वायर. राइट. नाउ दिस इज 6 माइनस रूट 18 अपॉन 2 एंड रूट 2 का स्क्वायर इज 2 एंड द स्क्वायर ऑफ रूट 6 इज 6. नाउ 18 को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं. 9 2s are 18 बिकॉज 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3. आई डिड हियर रूट 6 माइनस रूट 9 2s are 18 होता है. ये 18 को स्प्लिट किया एंड 2 में से 6 माइनस करेंगे तो -4. सो इट्स रूट 6 माइनस 3 रूट 2. ये 9 स्क्वायर रूट के बाहर आया तो 3 हुआ अपॉन 4 2s are 8 -8. अब डिनोमिनेटर में यूजुअली हम माइनस का साइन नहीं रखते हैं. हाउ टू रिमूव दिस? बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1. इसको -1 से करेंगे, -1 इंटू -8 विल बिकम +8. इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा -6 और ये -3 रूट 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 रूट 2 हो जाएगा. इन शॉर्ट यू हैव टू चेंज द साइन. अगर आप यहाँ का नेगेटिव साइन हटाते हो तो न्यूमरेटर की साइन अपोजिट ले लेना. ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना और ये पॉजिटिव है तो
नेगेटिव कर देना. ओके, दैट्स ऑल. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज क्वेश्चन 4? इट इज sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 upon sec 30 plus cos 60 plus cot 45. Let's substitute the value. Sin 30 is 1 by 2, tan 45 is 1, minus cosec 60 is 2 by root 3, divided by sec 30 2 by root 3, cos 60 1 by 2 and cot 45 plus 1. इनका हमने दोनों का न्यूमरेटर का भी एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लिया. इसका एलसीएम क्या आएगा? यहाँ अपॉन में 1 है, ये 2 है और ये रूट 3 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 रूट 3. ओके, फिर यहाँ पर 2 है तो आपको यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना होगा? रूट 3 से. यहाँ पर सिर्फ 1 है तो इस 1 में आपको 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. और यहाँ पे रूट 3 है तो यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, बिकॉज द एलसीएम इज 2 रूट 3. सो ये 1 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 3 हो गया, 1 को 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 रूट 3 हो गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया. ठीक है. सिमिलरली इसका भी एलसीएम क्या आएगा? इन तीनों का 2 रूट 3 आएगा. तो 2 रूट 3, यहाँ पे रूट 3 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. यहाँ पे 2 है तो इसे रूट 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ 1 ही है तो इसको पूरा 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. क्या होगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू रूट 3 रूट 3, 1 इंटू 2 रूट 3 2 रूट 3, एलसीएम इज 2 रूट 3. से दिस 2 रूट 3 और ये 2 रूट 3 दोनों कैंसिल हो गए. तो क्या रहा? हाँ, आप इन्हें भी ऐड कर सकते हो. ये दोनों रूट 3 सेम रूट्स है ना, तो ये 2 रूट 3 और ये 1 रूट 3 कितना हो जाएगा? ये 3 रूट 3 माइनस 4 आंसर आएगा इसका. और यहाँ पे भी ये रूट 3 ऐड होके 3 रूट 3, ये 2 रूट 3 और 1 रूट 3, 3 रूट 3 प्लस 4 आ जाएगा. ठीक है, दिस इज. अब अगेन वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, राइट. सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे? 3 रूट 3 प्लस 4 है तो 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 रूट 3 माइनस 4. करेक्ट, रैशनलाइज किया तो दिस इज 3 रूट 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 रूट 3 माइनस 4, दैट इज 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर. या तो फिर आप 3 रूट 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो दोनों से, फिर माइनस 4 से भी दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है. यहाँ पे आइडेंटिटी से ईजिली हो जाएगा, इसलिए आइडेंटिटी मैं अप्लाई करूंगी. दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, लेट्स expand it. Okay, by identity a minus b whole square, a square, a यानी 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3 रूट 3 इंटू b इज 4 प्लस b स्क्वायर दैट इज स्क्वायर ऑफ 4. नाउ 3 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? कैसे निकालेंगे आप? 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 का स्क्वायर. सी दिस 3 इंटू रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू रूट 3, स्क्वायर निकाल रहे हैं ना आप, तो 3 3 सा कितना हो जाएगा? 9, एंड रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 कितना हो जाएगा? 3. सो दिस 9, यहाँ पे 9 आया और ये 3, 9 3 सा कितना होगा? 27. करेक्ट. ये ब्लर है थोड़ा सा, 1 सेकेंड वेट. इज इट क्लियर? सो नाउ दिस इज 9 3 सा आपका आ गया 27. वो 9 और 3 आपको समझ में आया कैसे आया? इनको मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ज़ा 9 हुआ, और रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 किया तो 3 आया, तो 9 3 ज़ा कितना हो गया? वो 27 हुआ. और दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16. नाउ 3 रूट 3 का स्क्वायर तो अभी हमने देखा, 9 इंटू 3 मतलब 27 होगा, और इनका प्रोडक्ट 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24. तो यहाँ पे किया, पहले मैंने इन दोनों को स्टेज पे मल्टीप्लाई करके 6 रूट 3 इंटू 4 लिखा, और आगे 6 4 ज़ा 24 रूट 3, एंड द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, और यहाँ एज इट इज कॉपी किया 16. नाउ 27 और 16 को हम ऐड कर सकते हैं, वो ऐड होके 43 होगा, और ये आया आपका 27 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 11. सो दिस इज 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11. अंडरस्टूड? नाउ द फिफ्थ सम, द लास्ट सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इट इज 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 upon sin square 30 plus cos square 30. Let's substitute the value. It is 5 multiplied by cos 30 is 1 by 2 square, क्योंकि यहाँ square है, plus 4 into sec 30. The value of sec 30 is 2 root 3 and the square, minus tan 45. The value of tan 45 is 1 upon sin 30. The value of sin 30 is 1 by 2 square, plus cos 30, the value of cos 30 is root 3 by 2 का स्क्वायर.
नाउ 5 एज इट इज हमने यहाँ लिखा ये स्टेप पे, और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 1/4 आया, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड द स्क्वायर ऑफ रूट 3 इज 3 माइनस द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 3/4 आ गया। अभी ये आएगा 5 1 जा 5, मतलब ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 4/4, ये पूरा आपका कैंसिल हो सकता है। सी दिस स्टेप, ये इनका मल्टीप्लाई होके आगे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया, और वो 4 4 कैंसिल हो गया, तो अपॉन में क्या बचा आपका 1 बचा, मीन्स ओके वो खत्म हो गया, 1 लिखते नहीं है हम लोग। नाउ दिस इज, अब हमने क्या किया, ये जो आपका बचा है यहाँ पे दिस इज 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। अब सिर्फ इनको ही सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो इनका एलसीएम लिया 4 3 = 12, राइट। अब इसको 4 इसे 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 12 3 4 = 12, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 है 1 12 = 12, सो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 = 15, देन दिस इज 16 4 = 64 और 1 12 = 12/12। नाउ 15 + 64 is equal to 79, right, and minus 12. So 79 minus 12 is equal to what? 79 minus 12 is equal to 67. So your answer is 67/12. Understood? See this, 15 और 64 को ऐड किया तो 79 minus 12, 79 minus 12 किया तो हमने 67/12 is the answer.